welcome back. I hope you are healthy and eager to embrace the new normal. Uh, for me, last 6 months they have been sort of a hurdle because the basic rule for innovation is that you interact, and since the interaction level was not that much with my colleagues and students, new ideas were hard to come by. अगर आपको कभी मौका मिलेगा, you should read the book called Where Good Ideas Come From, and there you will find the good habits one should adopt to find solutions to your problems, not only research ideas. So that is a social activity. Anyways, today's lecture is only about the introduction. I will answer some of the basic questions that can I take this course if I haven't taken the machine learning course? I love deep learning, so will I be teaching any deep learning part in this course? I am taking image processing course, so what is the advantage of taking computer vision course? So these are some of the questions I have to answer. It doesn't mean that the things that you will be studying in other courses, it's not relevant and important. It's just that this course focuses on few aspects of AI and robotics, which are to this course. So I don't expect anything from this course appearing in your midterm exam. You should relax for today, and the evaluation part will start from Thursday. So for the online team, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So this is just a brief introduction. There are few familiar faces, there are few new faces. So I work in the robotics and signal processing lab here at SEEX. This lab has been recently started. We did not have a robotics department in SEEX. We started this in 2016-17, and now we have a lot of actual physical hardware that you can use in the lab. So this differentiates us from other labs where you start from data and you end on data. There is a world beyond data, the actual physical world. So our lab specializes in that domain. So I will just share few achievements of your colleagues who have been working with this lab. So most of you will be aware of this tool called Microsoft Academic. It is similar to Google Scholar. So if you want to find out about any the quality of a research paper, you should go and check on this portal. It gives you the ranking of the conference or on the journal. It tells you which organizations publish in this journal, what is the actual ranking. So two of our papers were accepted recently in this journal. This is called Autonomous Robot. You can find out, where is this one? Try finding that journal in this list.
So what you do is that you go and you type any topic like deep learning, robotics, AI, whatever. It gives you a list of top venues where you can publish something, top institutes publishing in this venue. So we are at number 1, 2, 3, 4, 5. So we are at number 5. So the next ones are closer to us. So we are aiming for the second or first one in the next year. So you can see Carnegie Mellon and Oxford, and you will also see like CVPR over here, and these are the top conferences. So anyway, it is just to share with you that these students, so normally I receive an email that, okay, please write a recommendation letter for me. So I said, okay, please share a draft of that letter with me. So when I received that letter, so अभी भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, exceptional student, outstanding analytical abilities. So I mean, people who are giving you scholarships or giving you admission abroad, the moment they see these kind of sentences, the moment your recommendation letter goes to the dustbin. I mean, how have you proved your exceptionalism? How have you proved your brilliance? There are gazillion other students in the world who have a GPA of 3.9, who have taken an A in a computer vision course. So what is so special about you? Other than just bragging about yourself, there is nothing more to that recommendation letter. This is a mistake which I did as a student. I wanted my recommendation letter to flash. Over the years that I figured out what should have been there in my recommendation letter. So this is the actual proof. Now if I have to write the recommendation letter of these students, I will state this student submitted 2017, end of 2017, got rejected in 2018, submitted a response in 2019, got a major revision in end of 2019, submitted the response in 2020, and got the acceptance in September 2. So this student is hardworking, perseverance. So these are the words when I write, I have a proof to support it. Rather than saying, oh, I have a paper in an unknown conference, nobody about this whole journey of getting rejected and responding is what the top researchers are looking at. That which students are like, they care about their research, they are willing to invest time. So this student started in 2014, graduated in 2018, still continued to work till 2020. So this is just an example. So I try to, it's unfortunate that these courses come at the end of your degree. We are not able to share these things with you, but this is what you should be aiming at. Report your journey, report the journey of your research, even if it takes one semester extra. Don't go for those quick solutions that I will do this thing and the next day I will have a paper and then I will have this recommendation. Excellent performance, exceptional student. I haven't seen a student like this in my life. So anyways, so then these will be the only two students. I am still searching for others who have strived this much longer in SEEKs or in Pakistan to get their paper accepted in a respected venue. Again, we had a paper in last year in British Machine Vision Conference. This is the most prestigious and the oldest conference. I think so. Maybe Oxford started it, and from there you will see the emergence of this vision theory and all that.
So anyways, so congratulations to these students. So now we get started with what will we be learning in this course that we did not when we were training deep neural network with gazillion of training examples and I don't know how many fancy words, PyTorch and TensorFlow, and the list goes on. So this is a famous painting from like 15th century or 16th century. The guy painted this thing in 16th century and he painted something on the floor. Can you guess what it is? If you have guessed it right, just keep it to yourself, let others guess. There is no wrong answer to this question. The only purpose of showing you this figure is the brilliance of the artist. So, can you guess what it is? कुछ तो guess करें. Sir, skull. क्या है? Skull. हाँ, ये लिखा हुआ है ना नीचे. Yeah. So, what is the importance of this figure? We will get to it later. So, this is the answer to your first query. How is this course different to recent important deep learning tools? So, in deep learning, what happens is that I am trying to solve a problem. I have to gather lots of examples. Once I have lot of examples and I know how to handle these tools, I will get a solution with varying degree of success. So, what if I don't have too many examples? What will happen then? फिर क्या होगा? I have two options. I will go and gather data, or I can do something else, which we will be doing in this course. We will try to understand what are the other solutions. So now let's say I have to gather 1 million images. How much time it takes to gather 1 million images? Imagine I am not Facebook and Google and I want to do research. So my entire effort will go into system designing will start later on. It can take tests while I gather data. एक तो ये. But if I am flexible enough and I am ready to appreciate the brilliance of researchers prior to deep learning era, I have multiple options. If I understand the problem, then maybe I don't need too many examples. एक ये है कि मैंने रट्टा लगाना है, तो मैं पूरी किताब ही याद कर लूँगा, और मैं जो इम्तिहान में सवाल आए ना वो आए उन्हीं में से. So this is the deep learning approach. और दूसरा है कि मैं अगर समझ जाऊंगा तो शायद मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जितने कर लिए हैं ना एग्जाम्पल्स ये काफी. So this is the focus of this course. We will try to understand few of the excellent algorithms that we designed prior to deep learning era. What were we doing in 70s and 80s and 90s and the first decade of this century? तब भी तो कुछ कर रहे होंगे ना. तो ये हमारा गोल है और हमने देखा है कि ये सिस्टम बहुत अच्छे काम करते हैं जो हैंड क्राफ्टेड सिस्टम है. ये देखें ना, Ohm's law आपने यूज किया, it works perfectly.
आई डोंट नीड ट्रेनिंग एग्जांपल्स टू टेल कि अगर तुम मुझे वोल्टेज और रेजिस्टेंस बता दे तो मैं उसको करंट बता सकता हूँ। मैं बता सकता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स की ज़रूरत है। आपने फिल्टर डिज़ाइन किया है, आपने ये फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, यू हैव डिजाइंड सो मेनी सिस्टम्स। So these are called handcrafted features। ये जो सारे आप अपने डबल में पढ़ते हुए आए हैं ना, थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी, कम्युनिकेशन सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल थ्योरी, ये सारे थे जस्ट बाय इन्वेस्टिंग टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम है जो हम नहीं सॉल्व कर सके। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने बड़ी कोशिश की। कलर ऑब्जेक्ट होता है, नहीं। टेक्सचर ऑब्जेक्ट होता है, नहीं। एजेस ऑब्जेक्ट होते हैं, नहीं। ये कोई इल्हामी जो है ना कैपेबिलिटी है जो इंसान लेके पैदा होता है। दिस वाज आल्सो अ थ्योरी वंस अपॉन अ टाइम। डिवीजन आप सीख ही नहीं सकते, जो भी किया वो फिर दिस इज एन इनएट एबिलिटी जो आप लेके पैदा होते हैं। तो फिर मशीन लर्निंग इज हेल्पिंग अस, डीप लर्निंग इज हेल्पिंग अस इन दैट डोमेन जो हम फिगर नहीं करते। बट वी विल ट्राई टू, even when we are designing these deep learning systems, I read a paper and then the question comes to my mind, अच्छा इसको कैसे पता चल गया कि ये वाली लेयर ऐड करते तो ये काम हो जाना था? How did that come to his mind? This is this literature that existed prior to deep learning, where you understood the problem. So the inspiration is taken from these classic methods. So these are very important. Normally not appreciated. मैं क्यों पढ़ूँ कंप्यूटर विजन? मैंने तो डीप लर्निंग करनी है और मैंने पाइटॉर्च करनी है और मैं पता नहीं वो कोल ऐप पे काम करूँगा और ये क्या काम मुझे करवाना शुरू कर दिया है, मैथ पढ़ानी शुरू कर दी है। दिस इज फॉर दोस्त कि ये जो आप फ्लैशी पेपर्स देखते हैं, दे हैव अ हिस्ट्री। So this is, and here was one of my favorite papers recently जो मैंने पढ़ा था। ये वो कहते हैं कि हमने कंपेयर करके देखा है, बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी डीप लर्निंग सिस्टम को, उसने जो फीचर्स कैलकुलेट किए वो हैंडक्राफ्टेड से अभी अच्छे नहीं है, कभी हो जाए तो ठीक है। तो वी हैव सॉलिड प्रूफ हैंडक्राफ्टेड मेथड्स आर बीटिंग, एक दफा बोलने की कोशिश करें, हैंडक्राफ्टेड मेथड्स आर बीटिंग, एक दफा बोले, आसानी पैदा होगी आपके लिए। तो दिस इज फ्रॉम अ वेरी फेमस ग्रुप इन। तो नाउ लेट्स सी ये पेंटिंग में क्या मिस्ट्री थी। ये वो गैलरी है शायद जहाँ पे ये पेंटिंग लगी हुई है और ये बंदा जो है ना अब आपको बताएगा। कल नजर आना शुरू हो गया? सर ये तो पहले बता दिया था सर आपको सर। हाँ कल तो बता दिया था, पेपर में जो मैं पिक्चर दूंगा वो तो नहीं बताऊंगा ना। आप वहां पे भी लिख दीजिएगा, आई एम अ डीप लर्निंग एंथुसियास्ट। मुझे इस कल ही बताया गया था ट्रेनिंग एग्जाम्पल में, ये अल्लाह की कसम स्कल है। अच्छा तो ओके, वेरी गुड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। फायदा क्या है इसका? फायदा जो है ना उसका ये है कि एडवर्सरियल अटैक मेरे पास एक तस्वीर है। अगर मैं ये समझ जाऊँ ना ये आर्टिस्ट ने क्या किया है, तो मैं से एक तस्वीर से और तस्वीरें बनाऊंगा। एक तस्वीर से
और तस्वीरें बनाऊंगा और इमेजेस नहीं लूंगा ट्रेनिंग करने की। तो ये जो आपको नजर आ रही है ना उस साइड पे, राइट साइड ऑफ योर, या आपकी राइट ही बनती है, ये these are the images which are generated using non deep learning method, very simple method using this image. So the code is available over here if you want to try any other image. कोई भी perspective scene ले लें और it will give you an image of different sides. तो इसका क्या फायदा होगा आपको? ये वाली बिल्डिंग कौन सी है जो राइट पे जिस पे मैं कर रहा हूँ, ये जो बॉटम पे ये जो बिल्डिंग है, ये इस तस्वीर में बता सकते हैं आप कहाँ पे है? आप इस पे खिड़कियां गिन सकते हैं? हाउ मेनी विंडोज आर ऑन दिस बिल्डिंग? गिन सकते हैं ना? 1 2 3 4 5। अब इस इमेज में गिन सकते हैं? थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बताना। A simple handcrafted technique is aiding your visual system. This is no mean achievement. ये कोई बहुत छोटी अचीवमेंट नहीं है। When we train a deep learning system, हम टेस्ट तो खुद ही कर रहे होते हैं कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट नहीं डिटेक्ट किया, ये कर लिया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने कि योर विजन सिस्टम इज फेसिंग अ चैलेंज एंड सिंपल हैंडक्राफ्टेड सिस्टम इज गिविंग एंड इट इज जस्ट अ 3x3 मैट्रिक्स। ये जो सीलिंग है इसकी बैक रो पे आप नंबर्स पढ़ सकते हैं। सबसे पीछे क्या लिखा हुआ है? कोशिश करें, पढ़ लेंगे आप लोग। इधर पढ़ सकते हैं ये बॉटम रो पे क्या लिखा हुआ है? यस सर। क्या लिखा हुआ है? कल 5 सर कल पिछले वाले में था। इसमें क्या है? ये पहला नंबर क्या है जिसपे मैं होवर कर रहा हूँ? 5। Okay, so similarly another example, an outdoor example where you generate multiple views from a single image. Okay, so again this is one of my favorite images. जो vision sensor है ना, one of its qualities is that its range is infinite. आसमान भी नजर आता है। और कोई एक्टिव सेंसर जो आपने पढ़ा है ना आज तक, की रेंज इतनी नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा है, मोबाइल, वाईफाई, ये सारे सिस्टम है, इनकी रेंज लिमिटेड है। वाईफाई से दूर हो जाए तो काम होना बंद हो जाता है। विजन सिस्टम वाहिद सिस्टम है जिसकी रेंज इनफिनिट, हमें आसमान नजर आता है। तो नो एक्टिव सेंसर कैन मैच द कैपेबिलिटी ऑफ विजन सेंसर, पैसिव विजन सेंसर। और ये सिंगल इमेज से ना हमने पता चला लिया। अब इसका क्या फायदा हो सकता है इन इमेजेस का? आई डोंट नो सर ये जो इन्होंने साइड व्यू और फ्रंट व्यू निकाला है सर, इसको सिर्फ ग्राउंड ट्रूथ के साथ कंपेयर किया है या बस खाली रिजल्ट दिखाया है इसका? हाँ, इसमें ग्राउंड ट्रूथ से कर लेना आप कंपेयर। आप ये देखेंगे कि आपको सारी विंडोज का साइज एक जैसा लगेगा। कोई आपको डिस्टॉर्शन नजर आ रही है अपेरेंट? नो। मुश्किल है ना, मतलब अगर कोई फाइनाइट कुछ ग्राउंड ट्रूथ जैसा ना भी हो तो 95% उस जैसा ही है। आई विल टेक इट एनी। मुझे कोई कहे ना कि इस बिल्डिंग पे जरा चढ़ें ऊपर और मैयर करके बताएं इसकी हाइट क्या है, तो आई वुड रादर वांट कि मैं इसमें से देखकर बता दूं। तो ये जो है ना, वी यूज दिस टेक्निक टू इम्प्रूव टेक्स्ट डिटेक्शन इन 2016, वन ऑफ आवर लैब्स पेपर। मैंने दिखाया है कि पर्सपेक्टिव से चीज़ें सही नज़र नहीं आती और टेक्स्ट अक्सर होता ही पर्सपेक्टिव में। आप यू आर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, तो शॉप्स के नाम दे अपीयर एट अ पर्सपेक्टिव। तो वो जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट आप टेक्स्ट डिटेक्टर यूज करेंगे ना, वो मिस कर जाएगा। 2016 की बात है। अब टेक्स्ट डिटेक्टर्स थोड़े बेहतर हो गए हैं,
क्यों बेहतर हो गए? डीप लर्निंग। Deep learning. Handcrafted में। क्या मुझे आवाज नहीं आई? क्या कह रहे? I couldn't hear, so I cannot laugh. So there are like multiple examples. This is a practical example कि आप जाते हैं ना कहीं, अच्छा यूं गाड़ी ऐसा करें तो हम आपकी नंबर प्लेट पढ़ लेंगे, यही हो रहा होता है ना। तो if you have this ability to understand these images, फिर ये काम नहीं हो रहा होगा किसी भी एंगल से। कैमरा कहीं पे भी लगाया हुआ है, आपके लिए वो फ्रंटल एंगल है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसेस इमेजेस इन दिस मैनर, हम देखेंगे इट्स सो सिंपल, 3 or 4 lines of code and not any machine learning mumbo jumbo and we get this result. अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये जो मुझे आप कह रहे थे ना डीप लर्निंग। अभी हम डीप लर्निंग को देखें। दिस इज अ पेपर फ्रॉम 2015 और 16। ये आप सर्च कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है एट द बॉटम ऑफ द। इन्होंने कहा कि डेटा सेट नहीं है तो हम पहले डेटा सेट इकट्ठा करेंगे और हम ये करेंगे कि पहले खुद इमेजेस के अंदर ना पर्सपेक्टिव टेक्स्ट पेस्ट करेंगे पेंट में जाके। अगर आप ये देखें ना, ये बेड की साइड पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ये ज़मीन पे कुछ लिखा हुआ है, ये टॉप राइट फिगर पे कैबिनेट पे कुछ लिखा हुआ है। तो दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एग्जांपल्स व्हिच द डीप लर्निंग सिस्टम कैन यूज एंड इम्प्रूव इटसेल्फ। 2015 और 16 कितने इमेजेस हैं? 800,000। So this was a CVPR in 2015. उसके बाद जो डीप लर्निंग वालों ने कहा कि ये बात पुरानी हो गई पर्सपेक्टिव टेक्स्ट डिटेक्ट करने वाली। We will detect curved text, मोनोग्राम पे जो लिखा होता है टेढ़ा मेढ़ा। This is 2000 और ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ राइट पे। So they used this data set to train themselves and few other images. तो इन्होंने कहा कि ये तो इसमें एक ही डिस्टॉर्शन है ना, एंगल से नजर आता है, हम और भी डालते हैं। We will look like, make the text look like sinusoid or triangular whatever, और हमारा सिस्टम डिटेक्ट करके दिखाता है। This is CVPR 2020 I think so. तो फिर I tested it. ये सिंपल टेक्स्ट है, इसमें कुछ और नहीं है। लेफ्ट साइड पे ये जिसके ऊपर ब्लू डब्बा बना हुआ है ना, वो डिटेक्शन है। जब सामने से दिखाओ तो सही डिटेक्ट करता है, जब पर्सपेक्टिव डाल लो तो दूसरी साइड पे कोई ब्लू डब्बा नजर आ रहा है आपको लफ्जों के ऊपर। तो जो काम 2016 में नहीं हो रहा था ना, वो 2020 में भी नहीं हो रहा। विद द स्टेट ऑफ द आर्ट। सर समझ नहीं आई सर इस बात की सर। थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसे तो नहीं समझ में आ जाएगी ना। नहीं सर, फेल किस चीज पे हुआ है सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इमेज पे ही फेल होना था, मेरे घर में बर्तन साफ करने पे तो नहीं होना था ना। इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू डाइजेस्ट डीप फेलियर ऑफ डीप सिस्टम्स, ऐसे नहीं होगा। तो आई विल गो स्लो फॉर द डीप लर्निंग एक्टिविस्ट। मैं थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है ना, ये एक वर्ड है जिसको इसने डिटेक्ट कर लिया और ब्लू डब्बा बना दिया। राइट पे वही लफ्ज है और इट्स सॉर्ट ऑफ देयर इज सम पर्सपेक्टिव इन इट एंड इट इज नॉट इवन डिटेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर। ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दिखाई। अभी इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे कि बैकग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा था, मतलब कोई बहाना नहीं है डीप लर्निंग के पास कि मुझे ये लग रहा था कि दिस इज अ कार, तो मैंने कहा कि ये डिटेक्ट नहीं करता, फॉल्स डिटेक्शन हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, हम बैकग्राउंड वाइट कर देंगे आप। So this is the performance in 2020.
तो ये जो 3x3 वाली मैट्रिक्स है ना, ये हम दोबारा यूज करके ना एक और पेपर लिखेंगे। तो maybe this can be a semester project if you are interested. I will come to this point later. So anyways, we have seen जो solution हमारे पास था और जो डीप लर्निंग क्लेम कर रही है वो है नहीं उसके पास अभी तक वो कैपेबिलिटी जो कि हमने सिंपल एक इमेज से करके दिखाई थी। आप क्या कंप्यूटर विजन वाले ये वही लफ्ज है ना, इस पे अगर मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो ये दिखना चाहिए, और ये दिखेगा तो कोई भी सिस्टम डिटेक्ट करता है। वो जो मैंने उन इमेजेस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी ना, तो जो पर्सपेक्टिव इमेज में आपको वॉल सीलिंग नजर आना शुरू हो जाती थी, अब इस पे अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो इस जैसा दिखेगा। इस पे अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो इस जैसा दिखेगा, और मुझे पता है जब इस जैसा दिखेगा तो वो डिटेक्ट करता है। I know a weakness and I know the solution. I am waiting for my paper. So then, so we have, I think so, some of you have joined my team now. They have departed from the deep learning camp and they are joining the computer vision camp. कुछ लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है. It is very hard for them. Their world has come crashing down. How could this happen? That deep learning is not working. Unfortunately, this is the reality. So they will remain in denial. अच्छा. Here is another example that we use commonly. अब तो बहुत ही common हो गया ना, मोबाइल फोन में पैनोरामा बनता है. जो solution वो problem solve कर रहा है ना, जो 3x3 मैट्रिक्स वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वही 3x3 मैट्रिक्स ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. We will see in this book. It is very simple. So if we understood the problem, we can solve many problems, and we don't need to waste our time gathering examples and hoping and praying at night that my deep learning system gives me a 92% accuracy or 0.011 loss that I can brag around the next day. So we will see. Okay, so then there is this next thing. There is another course about image processing, and a very important course. In that course, you will be learning few other handcrafted tricks, non-deep learning tricks that might help you to solve some of the other problems. But we deal images in a different way in this course. तो क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे तो कल नजर आ रहा है. No, sir. So again, this is a very famous paper in computer vision community prior to this deep learning era. It got the best paper award. It started a whole new field of image understanding. इनका कहना ये था कि we reason about our images, not thinking about pixels. कि अच्छा ये pixel red है तो apple होगा, तो blue है तो sky होगा. So you have to see these pixels in their context. वो बड़ी पिक्चर क्या है जिधर से ये पोर्शन क्रॉप करके आप लेकर आए हैं, ये है वो बड़ी पिक्चर जहां से ये पैचेस आ रहे हैं. तो अगर कोई पैच हॉरिजॉन्टल सरफेस से आ रहा है, if the patch is coming from a horizontal surface, can it be a window? ये खिड़की हो सकती है.
No, sir. Can it be a human? It can be if it's is run by a car, but most likely not. Or obviously it cannot be a 3D object, something which has volume. So this simple reasoning, this physical reasoning about those pixels. कि मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज. फ्लैट सरफेस है, वर्टिकल सरफेस है, तो यू कैन इम्प्रूव योर रीजनिंग अबाउट द सीन. ठीक है, ये रूल्स हमने बना लिए कुछ, और फिर हमारे कुछ हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्टर्स बना लिए, और एक हमने मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स लेबल करके डीप लर्निंग सिस्टम ट्रेन कर. तो वो मिलियन ऑफ इमेज एग्जांपल्स से उसने शायद ये चीज एक्सट्रैक्ट कर ली somehow, and we managed to do it with a single image. So this was you can go and check this paper from TNU, best paper award in GPR, one of the few papers which started area in image processing in computer vision. There are best papers every year, very few last the test of time. This is one of them. So again the same thing, imagine this white box is an image and you then a state of the art object detector और 2 डब्बे उसने बनाकर दिखा दिया आपको, तो या 3 बना दी. There is a red box as well. इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट कार हो सकती है? थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको कुछ और हिंट नहीं दे रहा. ग्रीन और रेड कार हो सकती है. क्यों ग्रीन कार क्यों हो सकती है? कार इकट्ठी भी खड़ी हो सकती है. अच्छा चलिए, अब मैं ना आपको सिर्फ कुछ सारी ज्योमेट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ और लाइंस ऐड करूंगा इमेज के अंदर. एक लेफ्ट वॉल है, एक फ्लोर है और एक राइट वॉल है. स्ट्रीट सीन है. आप बताएं. ठीक है, आपको पूरी ज्योमेट्री नहीं बताई मैंने कि मैं कोई लेजर सेंसर लेके या कोई एक्टिव सेंसर लेके हर पिक्सल की डेप्थ बताता कि दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज एक्स वाई जेड, दिस जो भी रफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको दी है. अब ये जो व्हाइट लाइन है ना जो आपको लेफ्ट में नजर आ रही है, ये थोड़ी अगर गलती हो जाती है आपके कोड से 5% एरर, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाती वॉल या थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर जाती, तो वुड इट हैव मेड एनी डिफरेंस टू योर रीजनिंग? So we just need qualitative reasoning about the images, not quantitative कि मैं कोई depth sensor महंगा सा लूँ और complete depth पता चलाऊँ, so I will come to a conclusion. These were the beautiful properties of this paper. They said, okay, forget about detecting objects, just detect a rough geometry of the scene, and that will go a long way. तो इसी एबिलिटी को यूज करके ना यू कैन कन्वर्ट अ सिंपल इमेज इन अ 3D मॉडल. अभी आप देखेंगे ये इमेज कन्वर्ट होगा 3D मॉडल में. परफेक्ट 3D नहीं बनाया उसने, इमेज को कुछ जगह से फोल्ड कर दिया और परफेक्ट भी नहीं किया, एग्जैक्ट नहीं. अगर आप ये देखेंगे ना, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो शायद ये फोल्ड जमीन जहाँ से ली है ना वहाँ एक्चुअली जमीन है नहीं, थोड़ा सा उसने गलती कर दी है. So if somebody gives me just this piece of information and imagine there is a robot and it is looking for an object, तो उसको ऑब्जेक्ट कहाँ पे तलाश करना चाहिए? वर्टिकल सरफेस में कि हॉरिजॉन्टल सरफेस? एक ऑब्जेक्ट है, फिजिकल चीज है, उसको सपोर्ट चाहिए,
अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ ग्रेविटी। तो कहाँ मुझे तलाश करना चाहिए? इस पूरे इमेज में कितने पिक्सल्स हैं जो ग्राउंड वाले हैं? छोटा सा पोर्शन है। तो अगर मैंने बहुत सारे पिक्सल्स को देखा ही नहीं तो मेरे गलती करने के चांसेस बहुत कम हो गए। So this is the physical reason. Just detect rough geometry of a scene, not every plane, just dominant planes. So this is about extracting. So we don't treat image as a set of pixels. We reason about the physical space or we reason in the 3D world. वो जो आपने तस्वीरें देखी थी जो नई बन रही थी, अगर मुझे किसी ने 3D मॉडल दिया होता, जिस तरह स्ट्रीट व्यू में होता है, आपको चीज पर्सपेक्टिव से नजर आ रही है, आप चलते हुए जाएं और सामने से देख लें। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव अ 3D मॉडल। या दूसरे ऑप्शन क्या है? लर्न कंप्यूटर विजन एंड क्रिएट मोर इमेजेस फ्रॉम अ सिंगल इमेज। तो here is another example. देखें, I want to use this image to make actual measurements. एक तस्वीर है, मैं तस्वीर को देखकर बताना चाहता हूँ कि जमीन ये फ्लोर का एरिया कितना है। ठीक है, इसका कोई फायदा है इस काम को करने का? यस सर। क्या फायदा है सर? एरिया पता चल जाएगा सर, मतलब डायमेंशन वगैरह में। हाँ, वही काम जो मैंने, फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट ऑनलाइन, किसी ने इमेजेस अपलोड किए हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है 50 स्क्वायर फुट। व्हाई शुड आई ट्रस्ट इट? मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा, तो फिर मैं वहाँ जाके कोई टेप लेके जाऊंगा और मेजर करना शुरू कर दूँ। यही काम अगर मैं इमेज से कर लूँ तो आई कैन स्टार्ट यूजिंग एज अ मैट्रिक इमेज एज अ मैट्रिक सेंसर। ये मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई कुछ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे देना आके, बहुत छोटा सा, एक टाइल का साइज जो है ना वो 1 स्क्वायर फुट होता है, तो आई कैन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द एरिया। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो आप लोग देखते हैं। ये नज़र आता है ना आपको कि इस इमेज के ऊपर एक्चुअल डिस्टेंस बना हुआ, ये कैसे कैलकुलेट होता है? हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? यूजिंग डीप लर्निंग। अगेन जो मैट्रिक्स वो पुराने प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना, 3x3 वाली, वो ये प्रॉब्लम वही सॉल्व कर रही है। So you see these handcrafted tools or methods, they give you power to design new systems. For example, this, I design a system which does this or something like this. So the limitation is my imagination. The power that I have, I can design something new. I can create a new world of my own. So this is the reason why we are interested in handcrafted tools. Every year I face a lot of resistance from the deep learning camp. मैं आपको रिव्यूज दिखाऊंगा और पिछले कोर्सेज के भी दिखाऊंगा, और आप जो रिव्यूज देंगे ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ द। तो पता ही कुछ नहीं है, उनको तो डीप लर्निंग का नहीं पता। ये हमें ये चीजें पढ़ाते रहते हैं, दुनिया डीप लर्निंग, द इंस्ट्रक्टर डजंट नो अबाउट द इंडस्ट्री, he is teaching us classic and useless methods. But every year I insist, and I will keep on insisting.
दिस वाज अ फेमस इशू। मैसी ने कोई किक ली थी और गोल हो गया, तो उन्होंने कहा ये तो फिजिकली नहीं है। तो फिर शोर मच गया कि अच्छा फिजिकल मेजरमेंट्स करो। अब कैसे करो भाई, वो तो चले गए वहां से ग्राउंड से, अब कौन कहाँ था क्या करें। क्या तो होता ना, मीटर वहां पे लेके खड़े हो जाते किक मारने से पहले कि नहीं नहीं पहले हम मैयर करेंगे। So then this evidence is good enough. Plus you need something extra. जो information इस image में है, you can already use it. Okay, the rules are very simple. I can briefly go over this. हमें करने की जरूरत नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, राइट फेसिंग चीजें इसके लेफ्ट पे हैं और लेफ्ट फेसिंग चीजें इसके राइट पे हैं। राइट फेसिंग चीजें इसके लेफ्ट पे हैं और लेफ्ट फेसिंग चीजें इसके राइट पे हैं। डू यू एग्री विद दिस? अब जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, अपवर्ड फेसिंग चीजें इसके नीचे हैं और डाउनवर्ड फेसिंग चीजें इसके ऊपर होंगी। आसमान डाउनवर्ड फेसिंग है, वो इसके ऊपर है। ये है अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ड्राइंग। कोई जिसने कभी पर्सपेक्टिव ड्राइंग की हो ना, या कोई आप आर्टिस्ट के पास जाएं, तो पहले वो ये लाइन ड्रॉ करता है कोई भी सीन ड्रॉ करने से पहले। ये दो लाइनें बनती हैं पहले। अच्छा, वो तो जब वो ड्रॉ कर रहा है तो बना रहा है ना, हमारे पास कहाँ से आएंगी। हम ये करते हैं कि हम कुछ अच्छा ये 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 पॉइंट्स अगर कोई मुझे बता देना तो ये 2 लाइनें में बना लूंगा। ये 3 पॉइंट्स आ जाएं तो ये 2 लाइनें बन जाएंगी। तो हम करते ये हैं कि इमेज में से जितनी लाइनें डिटेक्ट हो सकती हैं कर लेते हैं, सारी नहीं करने की जरूरत। क्लस्टर करते हैं, तो जो क्लस्टर हो जाती हैं ना उनको फिर इंटरसेक्ट करते हैं। वो सारी जो है ना ग्रीन वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, ब्लू वाली ब्लू पे करेंगी और रेड वाली रेड पे करेंगी। तो इस सिंपल ट्रिक से ना हम इमेज को देखे बगैर बता सकते हैं कि कौन सी चीज मुझे किधर नजर आएगी। ये एग्जांपल है। ये जो नीचे सबसे बॉटम पे आपको इमेज नजर आ रहा है ना, इसमें अनफॉर्चुनेटली ब्लू और रेड डॉट इमेज के बाहर है। तो वर्टिकल लाइन इमेज के बाहर है। तो क्या अगर मेरा सिस्टम मुझे कह रहा है कि आई डिटेक्ट अ राइट फेसिंग वॉल इन दिस इमेज, शुड आई ट्रस्ट दैट सिस्टम और नॉट? राइट फेसिंग चीजें कहां पे होंगी? वो जो लेफ्ट वाला है वो इमेज के अंदर है। इसका मतलब है मेरा जो सिस्टम है वो इट्स गिविंग मी wrong detection. I can cross out that false detection. You see, I can already start making lot of corrections just by points and lines. I don't need to go into fancy mathematics and all that. ये जो है ना, it was a very famous paper. उन्होंने कहा कि ये horizontal line जो है ना, इसको horizon बोलते हैं हम, और vertical line को vertical horizon बोलते हैं, लेकिन use नहीं करते horizon. For us, horizon is horizontal line. तो उन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स इसके पास होंगे वो छोटे होने चाहिए, जो ऑब्जेक्ट्स इससे दूर हैं वो बड़े होंगे। तो अगर इस लाइन के पास पास कोई बहुत बड़ा डब्बा बना हुआ है ना फॉर ह्यूमन डिटेक्टर, तो वो गलत है डब्बा, उसको आप डिलीट कर दें। ये सारे डब्बे थे, ये सारे डब्बे हैं राइट साइड पे, और फिर इस लाइन को देख कर ना आपने बहुत सारे डब्बे डिलीट कर दिए। तो आपने कहा कि इसमें बड़ा चांस था गलती करने का। अगर आप ये देखें ना, ये सिग्नल पे एक हैंड बना हुआ है एंड द हैंड इज नियर टू अ वर्टिकल स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने कोई सिस्टम ट्रेन किया है ना, तो उसको अगर कोई हैंड के पास वर्टिकल स्ट्रक्चर नजर आएगा तो वो उसको क्या कहेगा? चांसेस आर या ह्यूमन कहेगा या कल कह सकता है। तो using this physical reasoning you can get rid of lot of false positives. जी फाइंड आउट करेंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे। ड्रॉ करेंगे तो फिर तो ह्यूमन इनपुट होगी ना, हम तो ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं।
तो उस लाइन भी हमने सीन में से कैलकुलेट की है ना। हर इमेज के लिए मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, हर इमेज के लिए लाइन वहां होगी जहां होनी चाहिए, जहां जमीन और आसमान मिल रहे हैं, जहां एक्चुअल होराइजन है। कोई अपनी मर्जी से हम नहीं ड्रॉ कर रहे। अच्छा, तो let's take a look at this example and then we will take a break. We have, this is what we do in image processing. इमेज खराब हो गया तो किसी तरह इमेज को ठीक कर लें। इट हैज़ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। पहले ज़माने में आपकी फोटोग्राफ्स जो प्रिंटेड होती थी वो ख़राब हो जाती थी, तो यू वांट टू इम्प्रूव इट, रिस्टोर इट, हिस्टोरिकल फिगर्स। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड? अगर आप इमेज को एडिट करें और वो असली लगे तो इसका क्या फ़ायदा है? फेसबुक बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज़। एक चीज़ असली लगे, है नहीं, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फेक कंटेंट। ये मसला है ना आजकल हमारा। फेक कंटेंट डिटेक्शन is the top priority of Facebook these days. If you can write a paper in that, तो आपको ना सोने में तोल के ले जाएंगे वो। I recently studied a paper जिसमें they used 800 GPUs to detect fake image. 800 GPUs। पूरे सीक्स में कितने GPUs हैं? ये अब डीप लर्निंग वालों ने मुझे बताना है। तो ये देखें ना, अब पहले तो हम इमेज प्रोसेसिंग करके इमेज ठीक कर लेते थे ना, अब हम डीप लर्निंग करके इमेज ठीक कर लेते हैं। कुछ इमेजेस हम ठीक कर लेते हैं। ये आप में से कई लोगों ने इमेज देखे हैं पहले, जिन्होंने नहीं देखे ना वो गेस करें कौन सा फेक है। ये सारे फेक है, ठीक है। तो अब हमारे जबरदस्त टूल्स हो गए कि वी कैन क्रिएट फेक कंटेंट एट विल। क्योंकि मैंने ये पेपर पढ़ा हुआ है, देख के नहीं बता सका। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट मोस्ट इमेज है ना, ये एक इमेज है जो आपके पास है, ये भी फेक ही जनरेटेड है। और जो टॉप रो में इमेजेस है ना, वो भी आपके पास फेक इमेजेस हैं। दीज पीपल नेवर एग्जिस्टेड, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करें ना, दोनों इमेजेस को मिक्स करें समहाउ, तो ये नीचे वाली रोज के इमेजेस बनते हैं। So this is the power that generating fake content। कि मैं किसी बंदे के थोड़े से बाल चेंज करना चाहता हूँ, उसकी आंखों का रंग चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन डू इट। तो ये इन्होंने कर लिए हैं, जस्ट चेंजिंग द हेयर,
एवरी इमेज इज फेक। ये जो वीडियो में आप देख रहे थे ना, ये बंदे कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ इमेजेस फेस के साथ नहीं, कुछ और चीज़ों को भी ये कर लेते हैं चेंज। वेरी एक्साइटिंग टू। ये अब आपने ना, ये जो तस्वीर मैंने रोकी है ना गाड़ी की, ये अब आपने याद रखनी है, ठीक है। ये एक इमेज है, इसको टेम्पर किया हुआ है, बंदा था, इन पेंट कर दिया। कैसे बता सकते हैं आप ये फेक कंटेंट है? तो दोबारा हम आ गए 3D वर्ल्ड में। इमेज फॉर्मेशन इज अ 3D प्रोसेस। कहीं कैमरा होता है, कहीं लाइट होती है, ऑब्जेक्ट होता है, तो शेडो होती है। वो जो मैंने गाड़ी वाला इमेज आपको दिखाया था, उसमें शेडो ठीक बताया था। दोबारा से देखना चाहते हैं? डीप लर्निंग एंथुजियास्ट, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, ऑनलाइन में ज़्यादा है मेरा ख्याल है। चलें आप देख लेंगे, खुद ही देख लेंगे। तो दिस इज एन एरिया वेयर आई थिंक सो जनरेटिंग फेक कंटेंट इज स्लाइटली डिफिकल्ट। चेहरे आप बना देंगे क्लोजअप में, ऑब्जेक्ट शायद बना दें, बट मे बी थिंग्स आर नॉट कंसिस्टेंट, शेडोज आर नॉट कंसिस्टेंट। इट गिव्स अवे कि भाई ये इमेज रियल है कि नहीं। So I want to see a deep learning tool which can do this, कि उसको समझ में आ जाए कि ये जो काला काला होता है ये शेडो होता है, और ये शेडो जो है ना, मैंने कहीं पे भी नहीं बनाना होता, या हर वक्त नहीं बनाना होता। ये मैंने कब बनाना होता है? जब लाइट होती है कहीं पे। हम देख लेते हैं वो वीडियो दोबारा से। कहाँ बन रहा है शेडो गाड़ियों का? साइड पे क्यों नहीं बनाता ये शेडो? गाड़ी की साइड पे शेडो बन रहा है कहीं पे? तो ये फिर वो बेचारा रट्टा लगाया हुआ था ना, कि जो मुझे एग्जाम्पल दी थी उसमें गाड़ी के सामने ही शेडो होता है। उसने याद कर लिया कि अब मैंने शेडो बनाना है, तो गाड़ी का बोनेट जाएगा ना उधर, मैंने बना दिया। फंस गया बेचारा। ये आप नॉन डीप लर्निंग सोल्यूशन देखें, ये इन्होंने ड्रैगन पेस्ट किया है इस इमेज के अंदर। ये फर्स्ट मेड अ 3D फ्रॉम सिंगल इमेज, वो जो मैंने आपको दिखाया था इमेज फोल्ड करके। इन्होंने कहा बस हमें बता दें कि लाइट किधर है, लाइट सोर्स किधर है, हम इमेज एम्बेड करके दिखाएंगे। So again, an open research problem where you can improve the deep learning system. So we need to understand एक इमेज में ये 3D रीजनिंग कैसे आता है। दिस इज गोल, एक इमेज में से ज्योमेट्री पता चल जाए, और फिर हम नए इमेजेस बना रहे हैं, और रिकग्निशन बेहतर कर रहे हैं, और एक इमेज कंटेंट जनरेशन बेहतर कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। So let's take a break and then we will come to the point कि अच्छा ये तो सारा एक इमेज से हो रहा था, all this magic from single image. What if I have two images? ये हैं दो images which I normally use. What applications I can design using two images? तो वन से हम टू पे चले गए, मिलियन इमेजेस पे नहीं गए। So let's take a break and let's meet after 10 minutes.